Good afternoon, students. So, in the last class, we have seen different positions of a line with respect to HP and VP. Plus, how do we get the front view and top view in the first three positions? ठीक है, अलग अलग पोजीशन कौन कौन सी होती है लाइन्स की, और फर्स्ट थ्री पोजीशन बोले तो लाइन परपेंडिकुलर टू HP पैरेलल टू VP, लाइन परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP एंड लाइन पैरेलल टू बोथ। ये तीनों कंडीशन में लाइन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा आता है ये अपन देखेंगे। फिलहाल इसमें अपन देखेंगे कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 क्या है? लाइन इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP। ठीक है, इसमें लाइन इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP है। इसको एक फिगर के जरिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये पोजीशन को आई ट्राई टू इलस्ट्रेट दिस condition with the help of this figure here with respect to the horizontal plane and the vertical plane. So this is the vertical plane, this is the horizontal plane, and this complete arrangement is the first quadrant. This line is known as XY axis. Now supposing we have a line AB like this, right? This is end A, this is end B, and suppose this line is inclined at 45 degrees to HP. Suppose this line is 65 mm long, and suppose point A is 10 mm in front of BP, point B is also 10 mm in front of BP. So point A is 10 mm in front of BP, point B is also 10 mm in front of BP. Therefore, we say it is parallel to VP, right? So it is 30 mm above HP. Point A, I have given this distance as 30 mm, right? So point A is 30 mm above HP and 10 mm in front of VP. The line AB is inclined at 45 degrees to HP and it is 65 mm long. Length of the line is also given to us. ठीक है, तो ये HP और VP के अंदर इस तरीके से मैंने इसको शो किया पोजीशन। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इसको, अगर अपन एक लाइन मान के चलते हैं, लाइन AB, राइट, इसको ऐसा रख दिया मैंने। इधर देखेंगे गौर से, ये लाइन AB को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी ना कहीं, तो ये एंगल सपोज इसका 45 डिग्री है। कितने का है? 45 डिग्री। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं? लाइन AB इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू HP। अब ये पॉइंट A और ये पॉइंट B दोनों VP से सेम डिस्टेंस पर, दोनों इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम VP। आप देख रहे हैं ये पॉइंट A जो है इट इज एट सपोज 10 mm फ्रॉम VP, पॉइंट B therefore is also going to be 10 mm from VP, and therefore we say it is parallel to VP. Therefore we say it is parallel to VP. So all in all, this line is inclined to HP and parallel to VP, and its position is shown here in the first quadrant with respect to the horizontal plane and the vertical plane. So applying our usual projection technique, we will take projection of point A as well as projection of point B, one at a time. First we will draw the front view and then we will draw the top view. So let us see how we get it. पॉइंट A की लाइन में जाएंगे, we get along in line with point A from the front direction. See, this is the front direction always in the quadrant system. You have to remember this. This is the front direction, and this is the top direction. फ्रंट डायरेक्शन से आप सोर्स ऑफ लाइट को इधर उधर मूव कर सकते हो, ऐसा इस एक्सिस में और ये वर्टिकल एक्सिस में। ठीक है, दो टाइप के उसको मूवमेंट आप दे सकते हो। उसी तरीके से टॉप व्यू से आप ऐसा मूव कर सकते हो और आप ऐसा आगे और पीछे भी आ सकते हो। ये ऐसा मूव क्यों करना पड़ता है सोर्स ऑफ लाइट को? बिकॉज आपको ऑब्जेक्ट की लाइन में जाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट की लाइन में आप जाओगे तभी उसका प्रोजेक्शन ले पाओगे ना। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आपको इसका इमेज लेने का है, तो एक स्वाभाविक सी, एक नेचुरल सी बात है कि लाइट सोर्स जो आप लगाओगे इसकी लाइन में लगाओगे तभी इसकी शेडो आएगी ना, चाहे वो फ्रंट डायरेक्शन हो चाहे वो टॉप डायरेक्शन हो। तो फ्रंट डायरेक्शन में सोर्स ऑफ लाइट आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो,
इधर राइट में ले सकते हो, इधर लेफ्ट में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्ट जो है उसको सोर्स ऑफ लाइट की लाइन में लेकर आना, सो दैट वी कैन टेक इट्स इमेज। सो हियर from so far as point A is concerned, from the front direction, this will be the front view of A, therefore we call it as A dash. Similarly, B की लाइन पे गए, this will be front view of B, we call it as B dash, right? Then you join front view of A with front view of B like this. Slightly green color है ये, greenish. तो मैंने क्या किया, ए की लाइन में गया, ए डैश आया, बी की लाइन में गया, ये बी की लाइन है ना, तो ये बी का इमेज आ गया वर्टिकल प्लेन में, तो ए डैश और बी डैश को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी। ये वर्टिकल प्लेन है, आपको तो मालूम ही है, फ्रंट व्यू ऑलवेज कम्स ऑन द वर्टिकल प्लेन ओनली। फ्रंट डायरेक्शन से इमेज अपन लेंगे तो वर्टिकल प्लेन में आएगा। अब मैं टॉप डायरेक्शन से इसका प्रोजेक्शन लेता हूं वन एट अ टाइम। पॉइंट ए की लाइन में इफ आई गेट अलोंग इन लाइन विद पॉइंट ए, सो एट दिस पॉइंट यू विल गेट द टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए। फिर टॉप व्यू ऑफ पॉइंट बी, so you join top view of A with top view of B, so this is the top view of the line AB. This is the top view of the line AB. Now if you can see this figure, if you see this figure front view वर्टिकल प्लेन में आ रहा है, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है, बराबर। ये आपको ऑब्जर्वेशंस करना है। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, आप चाबी लाया कब नहीं हो? लाता हूँ लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना, आप इसलिए आपको बोल देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू आ रहा है वर्टिकल प्लेन में, टॉप व्यू आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इसमें इसके अलावा अपन क्या देख रहे हैं, फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू के बारे में अपन क्या देख रहे हैं, जैसा कि लाइन एचपी से 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, तो फ्रंट व्यू जो है ये भी 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। ये फिगर को देख के ऐसा अपन बोल सकते हैं, फ्रंट व्यू अगर 45 पे इंक्लाइंड है तो मतलब सॉरी, लाइन अगर 45 पे इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू भी 45 पे इंक्लाइंड है एक्स वाई से। फिर दूसरा, लाइन की लंबाई अगर 65 है तो ये फिगर को देख के ऐसा दिख रहा है कि फ्रंट व्यू की लंबाई जो है वो भी 65 है। तो फ्रंट व्यू के बारे में अपन दो चीज देख सकते हैं, क्या, एक, ये लाइन अगर 48 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है एचपी से, तो फ्रंट व्यू इज आल्सो इंक्लाइंड एट 48 डिग्रीज टू एक्स वाई। दिस इज वन। सेकंड, if the line is 65 millimeter long, the front view also appears to be 65 millimeter long, as we can see from this figure. Okay, so we can have, we have two observations. What two observations? One, if the line is inclined at 48 degrees to HP, front view is also making 48 degrees to XY. If the line is 65 millimeter long, front view also seems to be equal to 65 millimeter. Now, similarly in top view, what can we say about the top view? First of all, if the line is 65 millimeter long, as we can see from this figure,
टॉप व्यू जो है अपने को 65 का तो नहीं दिख रहा, छोटा होकर दिख रहा है। अब वो कितना छोटा होकर दिख रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। 45 डिग्रीज है तो अपने को टॉप व्यू जो है वो छोटा होकर दिख रहा है, इसीलिए इसको अपन रिड्यूस टॉप व्यू भी बोल सकते हैं, आर टी वी लिख सकते हैं इसको, आर टी वी रिड्यूस टॉप। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है टॉप व्यू के बारे में। कौन सा ऑब्जर्वेशन है कि लाइन की लंबाई 65 है तो टॉप व्यू अपने को 65 से कम दिख रहा है। और वो कितना कम दिख रहा है ये अपन यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रहे कि टॉप व्यू जो है वो छोटा हो रहा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, ये टॉप व्यू जो है एक्स वाई से पैरेलल, टॉप व्यू कैसा है, एक्स वाई से पैरेलल, इट इज पैरेलल टू एक्स वाई। Now, so this is our observation. Looking at the pictorial view of the line in the first quadrant, ठीक है, in between HP and PP. So I'll just write down this problem in words here. इसको example को अपन यहाँ लिख लेते words में, और फिर इसको कैसे solve करना हो अपन यहीं पर देखेंगे। So example, a line AB 65 millimeter long is inclined at 45 degrees to HP and is parallel to VP। ठीक है, मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ, लाइन AB 65 millimeter long is inclined at 45 degrees to HP and is parallel to VP। ओके, पॉइंट ए इज, पॉइंट ए का लोकेशन दिया हुआ है, पॉइंट ए इज 30 mm above HP and 10 millimeter in front of VP। Draw its front view and top view। Just take down the problem, all of you। I'll give you 2-3 minutes। ठीक है, लेक्चर के दौरान ही आपने पूरा यहाँ पे नोट डाउन कर लेने का है जो जो चल रहा है। लेक्चर खत्म हुआ तो आपके स्केचबुक में ये पूरा होना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, provided of course you understand it। just take down the problem, just take down the problem in your sketchbook। ये प्रॉब्लम नोट डाउन करेंगे। ये फिगर also you can have on the left hand side। so here you will need space आंसर बनाने के लिए, स्पेसिंग आपको प्रॉपरली करना है प्लान।
अभी इसको अपन देखेंगे। ये अपन ने प्रॉब्लम लिख ली है, ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम लिख ली है, ये इसका इलस्ट्रेशन है, ठीक है, फिगर के हिसाब से। लेकिन अपने को ऐसा आंसर नहीं चाहिए, अपने को आंसर एक्स वाई के फॉर्मेट में चाहिए, एक प्लेन में चाहिए। इसीलिए तो अपन एच पी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करते हैं ना, एच पी को अपन 90 डिग्री क्लॉकवाइज से टर्न करते हैं, बिकॉज वी वांट द एच पी एंड वी पी टू बी कोप्लेन। तो यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन, ये वी पी, ये एच पी, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इधर कैसे 9 AB 65 मीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री पे टारगेट वीपी। इसमें एक पॉइंट आपको लोकेशन दिया है। जब भी अपन लाइन का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो एक पॉइंट का लोकेशन हमेशा देता है, तो यही अपने को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की जो नॉलेज है वो यूज में आती है, ठीक है। Whenever we solve a problem on projection of lines, we are given location of one point to begin with, and it is here that we need to apply our knowledge on projection of points. So point A is 30 mm above HP. Point A is 30 mm above HP. मान लिखेंगे बैंक A dash कितना ऊपर है ये 30 mm, ठीक है। A dash 30 mm। उसके बाद इट इज 10 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP, 10 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। तो कहाँ दिखेगा HP में 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये प्रॉपर्ली डायमेंशनिंग भी करना है आपको, एक अलग से फिगर में डायमेंशनिंग कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज A डैश एंड दिस इज A, फ्रंट व्यू ऑफ A, टॉप व्यू ऑफ A। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि अपन ने यहाँ फ्रंट व्यू टॉप व्यू के बारे में देखे, the line is inclined at 45 degrees, front view is also inclined at 45 degrees। तो 45 डिग्रीज पे अपन यहाँ पे लाइन बनाएंगे, कितने डिग्रीज पे बनाएंगे 45 डिग्रीज। Now if the length of the line is 65 mm, the length of the front view also as per this figure is 65 mm, so this is 65। तो यहाँ पर B dash लिख देंगे, ये फिगर में दिख रहा है ना, यहाँ लाइन 45 डिग्री पे है तो फ्रंट व्यू 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री का एंगल लिया मैंने, फिर यहाँ से 65 मिलीमीटर कट किया है और ये पॉइंट का नाम दे दिया B डैश। तो 45 डिग्री का एंगल लेना है तो कैसे लेंगे, A डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, A डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आप 45 डिग्री का एंगल मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले फ्रंट व्यू बना लिया, बिकॉज फ्रंट व्यू में अपने को वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप बोलेंगे सर टॉप व्यू क्यों नहीं बनाया आपने पहले, तो टॉप व्यू आपको मालूम है कि एक्स वाई से पैरेलल है, बट यू डोंट नो द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, इट इज रिड्यूस्ड। तो टॉप व्यू अपन बना ही नहीं सकते, अपने को पहले फ्रंट व्यू बनाना होगा, इसलिए अपन ने फ्रंट व्यू पहले बना लिया, फ्रंट व्यू पहले बना लिया। एक बार देख लेंगे इधर, फिर उसके बाद यू कैन टेक इट डाउन। अभी जैसे ये A डैश की लाइन में A रहता है, फ्रंट व्यू ऑफ A और टॉप व्यू ऑफ A, they are connected by a projector line। front view of A और top view of A, they are connected by a projector line। similarly B dash जो है उसका top view भी उसी projector line में आएगा, तो यहाँ से एक projector line बना लेते हैं। this line which connects the front view of a point with its top view, so this line which is connecting front view of a point with its top view is known as projector line, as we have seen earlier। This line is known as projector line। क्योंकि अब ये इसका B डैश का फ्रंट व्यू फिक्स्ड है, तो प्रोजेक्टर लाइन लेके अपन बना लेंगे यहाँ, और इसी लाइन में टॉप व्यू रहने वाला है इतना श्योर शॉट। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा आपने को ये फिगर में देख के दिख रहा है कि टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई,
तो सीधा आपको क्या करना है, ए से एक लाइन बनाने का है पैरेलल टू एक्स वाई, ए से लाइन बनाने का है पैरेलल टू एक्स वाई। कहाँ तक के, कितनी लंबी, ये जो प्रोजेक्ट पे जा रहा है वहाँ तक के, ये पॉइंट आया, इसको नाम दे देंगे बी। तो ये हो गया आपका रिड्यूस्ड टॉप व्यू, रिड्यूस्ड टॉप व्यू। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर शुड बी इन दिस मैनर इन रिलेशन विद एक्स वाई। एक्स वाई लाइन में एरोहेड नहीं बनाने का है। फिर फाइनली आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये फ्रंट व्यू है, और ये रिड्यूस टॉप व्यू अपन ने लिख दीजिए, पहले नाम भी दे दिया ना अपन ने, लेबलिंग भी कर ली। सो दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू। टेक डाउन दिस प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप जाने का है। You have to go step by step. कंप्लीट कर लेंगे ये। जब आप ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना रहे हो तो ये फुल डायमेंशन लेके बनाने का है। तो 30 mm मतलब स्केल से लेने का है, 30 mm, 10 mm। फिर ये एंगल लेने का है 45 डिग्रीज पे लाइन बनाने का है। फिर रेडियस ले लो 65 और यहाँ कट कर दो, या स्केल से यहाँ से 65 मार्क कर दो, और फिर ये लाइन बनाओ प्रोजेक्टर लाइन। प्रोजेक्टर लाइन कैसी रहती है, एक्स वाई से 90 डिग्रीज पर। प्रोजेक्टर लाइन इज एट 90 डिग्रीज टू एक्स वाई लाइन। ये भी आप देख रहे हैं इट इज एट 90 डिग्रीज, ये भी आप देख रहे हैं इट इज एट 90 डिग्री। प्रोजेक्टर लाइन is at 90 degrees to xy line. Just take down this problem. Problem कर लीजिए फटाफट, I'll give you 2 minutes. लेक्चर के साथ साथ आपके पूरे प्रॉब्लम्स टेक्स्ट में आ जाने चाहिए।
आई गिव यू एन एग्जांपल, ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन। यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। Just take one example and try solving it on your own. Example 2, a line AB 75 millimeter long is inclined at 60 degrees to HP and is parallel to VP. Point A is 25 millimeter above HP and 15 mm in front of VP. Draw its projections. डॉक्यूमेंट बनाने का है। लाइन AB 75 millimeter long. A line AB 75 millimeter long is inclined at 60 degrees to HP and is parallel to VP. Point A is 25 millimeter above HP and 15 mm in front of VP. Draw its projections. ठीक है, ट्राई करेंगे अपने मन से, एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा और उसको आप उससे क्रॉस चेक करेंगे। आप जो आंसर बनाओगे स्केचबुक में और ये जो मैं यहाँ पे आंसर आपको बताऊँगा उससे क्रॉस चेक करोगे स्टेप बाय स्टेप। If you have any problem, you can correct it there and then. पिछले वाला प्रॉब्लम आपने किए थे, सिमिलर प्रॉब्लम है ये, ठीक है। 60 डिग्रीज का एंगल है, 60 डिग्रीज और 75 millimeter लॉन्ग। You can take the help of this figure. Inclination is 60 degrees, the length of the line is 75 millimeter. So try solving it on your own. I'll just give you 4-5 minutes और उसके बाद यहाँ चेक करेंगे मेरे आंसर से। प्रॉब्लम लिख लीजिए बेटा। देखिए कहीं कहीं अगर ये फेंट हो जा रहा है तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ बार बार। चेक कर लेंगे यहाँ। लाइन AB 75 millimeter long is inclined at 60 degrees to HP and is parallel to VP. Point A is 25 millimeter above HP and 15 mm in front of VP. Draw its projections. Point A is 25 millimeter above HP, इसको दिख नहीं रहा है ये, देखिए इसको डार्क कर दे रहा हूँ। 25 millimeter above HP and 15 mm in front of VP. प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
तो इधर देखेंगे आपका हो गया होगा शायद। लुक हियर, a line AB 75 mm long is inclined at 60 degrees to HP and is parallel to VP. Point A 25 mm above HP and 15 mm in front of VP. So point A का लोकेशन दिया हुआ है. So this is XY, this is VP, this is HP. Point A is 25 mm above HP. कहाँ दिखेगा? VP. A dash 25 and 15 mm in front of VP. कहाँ दिखेगा? HP. ठीक है, 25 मिलीमीटर अबव एचपी था, वीपी में दिखा दिए, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, 15 mm एचपी में दिखा दिया। उसके बाद द लाइन इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू एचपी। तो आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री के अंदर आपको 30 में दिखेगा ना, तो यहाँ से ए से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो ऐसा, और फिर ये 60 डिग्री पे लंबी लाइन बना लो, 60 डिग्री पे लंबी लाइन बना लो फ्रॉम पॉइंट ए डैश। For that you need to draw a horizontal line and then you can measure the sector. Now you know length of the line is 75 mm. तो 75 mm अपने कहाँ दिखेगा? लाइन की जितनी लंबाई रहती है वो कहाँ दिखती है? 20 में दिखती है। तो 75 रेडियस लेके ए डैश को सेंटर रख के आप इसको कट कर सकते हो बी डैश, या स्केल से यहाँ से यहाँ तक 75 मेजर कर लो और इसको डार्क कर लो, because this is your answer, so answer has to be highlighted. So like in the earlier problem, अभी अपने को तो बी का टॉप व्यू चाहिए, तो फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर लाइन बना लेंगे ना बी डैश से एट 90 डिग्री टू एक्स वाई, प्रोजेक्टर लाइन बना लेंगे। उसके बाद अपने को मालूम है टॉप व्यू कैसा रहता है? एक्स वाई से पैरेलल रहता है। सो दिस इज रिड्यूस टॉप व्यू, दिस इज योर फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर आंसर। तो लाइन इंक्लाइन टू एचपी पैरेलल टू वीपी है, तो आप देखिए इसका आंसर ऐसा रहता है।
फ्रंट व्यू इज इंक्लाइन टू एक्स वाई, और लाइन की पूरी जो फुल लेंथ है 75 मिलीमीटर अपने को फ्रंट व्यू में दिख रही, और टॉप व्यू में रिड्यूस होकर अपने को जितना दिखना है वो दिख रहा है। सो टॉप व्यू की लंबाई डिपेंड करती है ये प्रोजेक्टर और ये प्रोजेक्टर के बीच का कितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से। तो वही आपको मैंने बोला ये एंगल 60 डिग्री है। अभी एंगल को और अगर अपन बढ़ाएंगे 70, 80, 90 तो टॉप व्यू क्या होगा, छोटा होता है। अभी देखिए उसको समझने का एक और तरीका है। ये लाइन ऐसी अपन ने रखे 75 मिलीमीटर लॉन्ग, इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू एच पी। तो आप सोचिए इसको अगर फ्रंट डायरेक्शन प्रोजेक्शन अगर आप इसका लेंगे, शेडो लेंगे, तो आपको इंक्लाइन लाइन दिखेंगी ना फ्रंट व्यू में, ठीक है। ये अगर आप बोर्ड को वर्टिकल प्लेन मान के चलेंगे, लाइन ऐसी है, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो फ्रंट व्यू में जो शेडो आएगा आपको इंक्लाइन लाइन दिखेगी, और जो एंगल यहाँ लाइन का है फ्रंट व्यू का भी वही एंगल रहेगा। फिर टॉप व्यू में क्या होगा, ये लाइन प्रोजेक्टर इसका मतलब इसका टॉप व्यू और इसका टॉप व्यू दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से ऐसा टॉप व्यू मिलेगा। अभी ये एंगल आपको बोल रहा 60 डिग्री, इसको 70 करे, 80 करे, 90 करे। अब ये लाइन एचपी से परपेंडिकुलर हो गई है, तो आप देख रहे हैं इसका टॉप व्यू कैसा हो गया, एक पॉइंट आ रहा है, यानी टॉप व्यू कैसा हो जाएगा, 0 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा है कंडीशन नंबर 1 में, व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी, तो आपको मैंने बताया इसका ऐसा रहता है ना, ये ई डैश, ये बी डैश, ये फ्रंट व्यू, और ये यहाँ पे एक पॉइंट आता है ए ऑब्लिक बी, टॉप व्यू। तो द मोर यू इंक्रीज द एंगल, योर टॉप व्यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये 60 डिग्री से अगर आपने और इसको ऐसा बढ़ाया 70, 80, 90, ऐसी स्टेज पे अगर आ गया तो टॉप व्यू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर रख के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ये ऐसा, ये लाइन कैसी है, एचपी से परपेंडिकुलर, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक पॉइंट, यानी टॉप व्यू की लंबाई कुछ है नहीं 0 mm, रिड्यूस टॉप व्यू जो है वो 0 mm हो रहा है। सो लेंथ ऑफ द टॉप व्यू विल फाइनली डिपेंड अपॉन दिस इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द मोर द इंक्लिनेशन, द लेसर विल बी द, या शॉर्टर विल बी द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड looking at this figure and the answer. फिर आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये फिगर अपन ने देख लिए, ये फिगर आपने देख ली, ये आंसर आपने देख ली, और ये क्वेश्चन। एक दो चीजें और नोट कर लेंगे यहाँ पे। ये आंसर आ रहा है कैसे, ये अपन ने समझ लिए। Note, the line AB 75 millimeter long is inclined at 60 degrees to HP. कितने पे inclined है, 60 degrees to HP। तो ये 60 degrees का एंगल अपने को कहाँ दिख रहा, VP में दिख रहा। तो 60 degrees का एंगल अपने को कहाँ दिख रहा, VP में दिख रहा। Relation of a line with HP to be shown in VP। अब ये रिलेशन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? Relation is includes what? Angle as well as distance। रिलेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ दो चीजें आती हैं, एंगल और डिस्टेंस। तो यहाँ पर अपन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, थंब रूल है, रिलेशन ऑफ लाइन विद एचपी टू बी शोन इन वीपी। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको समझेंगे अपन। The line is inclined at 60 degrees to HP, तो ये 60 डिग्री अपने कहाँ दिख रहा, VP में दिख रहा। 60 डिग्री अपने कहाँ दिख रहा, VP में दिख रहा। फिर पॉइंट ए 25 मिलीमीटर अबव HP, ये 25 मिलीमीटर देखिए आप यहाँ, 25 मिलीमीटर अपने कहाँ दिख रहा, VP में दिख रहा। तो एंगल और डिस्टेंस आते हैं रिलेशन में। तो रिलेशन ऑफ लाइन विद HP, यानी क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, रिलेशनशिप ऑफ अ लाइन विद HP, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा, रिलेशन ऑफ अ लाइन विथ एचपी, अपने को आंसर में क्या करना है, टू बी शोन इन वीपी, यानी वीपी में दिखाने का।
टू बी शोन इन वीपी, यानी वीपी में दिखाने का, ये प्रूफ है इसका, जीता जाता। आप देखिए यहाँ फिर से लाइन ए बी 75 मिलीमीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू एचपी से 60 डिग्री में इंक्लाइंड, तो 60 डिग्री अपन ने कहा दिखा दिया वीपी, ये एक चीज़ होगी। फिर दूसरा देखिए ना, पॉइंट इज 25 मिलीमीटर अबव एचपी, तो 25 मिलीमीटर अपन ने कहा दिखा दिए वीपी में दिखा दिया। तो वही अपन यहाँ बोल रहे हैं कि रिलेशन ऑफ अ लाइन विद एचपी, यानी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसकी रिलेशनशिप विद एचपी टू बी शोन इन वीपी, अपने कहाँ दिखाने का है, वीपी में दिखाने का है। जब हम आंसर बनाएंगे तब ये अपन थंब रूल इसलिए लिख रहे हैं, ये थंब रूल अपन इसलिए बना रहे हैं कि जब आप एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम करोगे तो ये फिगर आप विजुअलाइज करो ना करो, ये फिगर अपने को होता है सोचेंगे अपन, टाइम लगेगा ना ये फिगर को ध्यान रखने में, ये फिगर है, ये लाइन है, फिर इसका फ्रंट व्यू आ रहा है, इसका टॉप व्यू आ रहा है, ये इतना सब पूरा करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सीधा अपन मैकेनिकली सॉल्व करेंगे अगर, तो आप ये थंब रूल को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। जस्ट अप्लाई द थंब रूल एंड यू विल गेट द आंसर। इसको आपको यूज करके और बताऊंगा मैं। एक और नोट यहाँ लिख देते, ये इसका ऑपोजिट, रिलेशन ऑफ ए लाइन विथ वीपी शो इन एचपी, क्वेश्चन में रिलेशन ऑफ अ लाइन विथ वीपी जो भी रहेगा यू हैव टू शो इट इन एचपी। अभी आप यहाँ देखिए पॉइंट इज 25 अबव एचपी हो गया, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी का, तो एचपी में दिखना चाहिए, तो 15 mm एचपी में दिख रहा है, एक चीज़। दूसरा, लाइन कैसी है, इंक्लाइन टू एचपी और वीपी से पैरेलल, इससे पैरेलल है, वीपी से पैरेलल, तो एचपी में दिखना चाहिए, तो एचपी में आप देख रहे हैं टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, एचपी में आप देख रहे हैं टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो ये जो अपन ने यहाँ आंसर दिए उसी को अपन ने यहाँ पे अपने थंब रूल है, ये अपनी टेक्निक है, ये जिसको भी अपन अप्लाई करके आंसर्स जो है कन्वीनियंटली सॉल्व कर पाएंगे आगे वाले फ्यूचर में जो अपन प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें। सो ये यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी था, तो ये 15 mm अपन ने एचपी में दिखाया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन जो है कैसी है, वीपी से पैरेलल, वीपी से पैरेलल यहाँ पे एचपी में जो टॉप व्यू आ रहा है, एचपी में जो टॉप व्यू आ रहा है एक्स वाई से पैरेलल, तो क्वेश्चन में जो है उसका उलट आंसर में हो रहा है, तो वही अपने को यहाँ पे थंब रूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ अ लाइन विद वीपी, क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा यू हैव टू शो इट इन एचपी इन योर आंसर। So I think you have to keep all these things in mind. They should be there in your notebook. Okay. So this is all for today, and we continue in the next class. ये पूरा नोट करके रखिए बेटा।